Hello friend, welcome to the new video. So in this video, we are going to see multi-currency in Tally. Okay. So what is multi-currency? Many organizations have transaction in more than one currency. Such transactions has to be recorded in either base currency or in foreign currency. Maintaining more than one currency is called multi-currency in Tally. अगर आपका बिजनेस इंडिया के अंदर है और आप सेल्स जो है दुबई, सऊदी या और किसी देश को करते हैं तो आपको इनवॉइस जो है अक्सर डॉलर में देना रहता है। इसी चीज को टैली में मल्टी करेंसी बोलते हैं। By enabling the by enabling this feature, you can use various currency while making the purchase, sales, payment and receipt. Enabling this feature only if you want to maintain the accounts in the multi-currency or more than one currency. Generally, companies with the export-import business have to deal in more than one currency. For this purpose, they can enable the multi-currency. अक्सर जिन जो बाहर से माल सामान खरीदते हैं या बाहर माल सामान बेचते हैं देश के बाहर, उनको ये फीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज के लिए डॉलर में सेल और परचेस रिकॉर्ड्स करने रहते हैं। कंपनी क्रिएट करते समय जो हम सिंबल लेते हैं वहां पे वो हमारा बेस करेंसी होता है यानी कि होम करेंसी, और उसके बाद में जिस देश में जो सेल करते समय जो करेंसी हम लेते हैं डॉलर, यूरो, पाउंड, उसको हम फॉरेन करेंसी बोलते हैं। मल्टी करेंसी refers to the trading in the multiple currencies which calculate the buying and selling internationally. Creating a foreign currency journal revaluing transactions, foreign currencies to domestic rates and reporting in multiple currencies. When companies have a need to do business in the foreign or multiple currencies, without currency you cannot maintain the account in multiple currency, report and appropriate gain or loss. सो ये आपका था मल्टी करेंसी मीनिंग्स। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टी करेंसी? एबिलिटी टू account the transaction in different currencies, ability to translate the transaction and balance for the reporting purpose. Multi-currency is used when the business is involved with the multiple currencies and reports should be shown in the different currencies. Creating multi-currency and the account them using different currencies. So how to enable the multi-currency? We will see in Tally. Gateway of Tally F11 enable the option allow multi-currency yes if you are using the Tally RP9. So I am just going to create the company Tally Solution PVT Ltd. It is in state. I will put the PIN number, telephone number. I will give the telephone number, mobile number. I will put the mobile number. I will put the fax number not required. Okay. So like this we can put the website and every details we can put here website. So this is our base currency or home currency. I hope you understood. INR.
Indian currency INR. So now the company will get created. Company is getting created. I will make all the features. So here F label in Tally ERP9 F label F1. Tally ERP9 F label F1 enable option allow multi-currency. The option was here, but now in Tally Prime they have moved this option to the ledger creation. So I will go to the ledger creation. Gateway of Tally, create ledger. Gateway of Tally, create gateway of Tally. Gateway of Tally, CREATE, create, then currency, CURRENCY, currency. इंटर क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमको तो इन्फो करेंसी क्रिएट की कॉम्बिनेशन फॉर द फॉरेन करेंसीज। अगर आपको रुपीज क्रिएट करना है बाय डिफॉल्ट वो अगर आप कंपनी इंडिया के अंदर क्रिएट करेंगे तो रुपीज ही रहेगा। तो इसका जो है की कॉम्बिनेशन क्या है, कंट्रोल F4 और उसके बाद में अगर आप डॉलर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट F4। अगर आप पाउंड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस 156। अगर आप एन जो कि जापानी करेंसी है अगर आप क्रिएट करना है आपको तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस 165। अगर आपको यूरो करेंसी क्रिएट करना है तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस 128। अगर आप सेंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट करेंगे ऑल्ट प्लस 155। दिस इज प्लस, ओके, दिस इज प्लस सिंबल। इसी तरीके से आपको पशेटा यूज्ड इन जापान ये करेंसी अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस 158। नीदरलैंड फ्रैंक अगर आपको क्रिएट करना है तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस 159। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हाउ टू डिफाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज। अभी हम एक क्रिएट कर लेते हैं डॉलर, फर्स्ट DOLLOR डॉलर। यहाँ पे हमको सिंबल टाइप करना है डॉलर का तो हम प्रेस कर देंगे शिफ्ट F4। फॉर्मल नेम DOLLOR डॉलर। करेंसी कोड आप कुछ डाल सकते हैं जो भी आपका है, आपको गूगल में मिल जाएगा ऑनलाइन करेंसी कोड फॉर डॉलर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बाय डिफॉल्ट 2 ले लेगा। सो अमाउंट इन मिलियन नो, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल नो, word representing amount after decimal, एंटर करके इसको हम सेव कर लेंगे। हाउ टू डिफाइन रेट ऑफ एक्सचेंज। अब रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिफाइन करना है, रेट ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा एप्लीकेबल फ्रॉम 1st अप्रैल स्टैंडर्ड रेट। हाउ टू डिफाइन रेट इन द रेट करेंसी, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो करेंसी एक्सचेंज रेट। अब ये आपको सेम है गेटवे ऑफ टैली क्रिएट एक्सचेंज रेट, ठीक है। सेलिंग रेट स्पेसिफाइड रेट, selling rate is your selling rate as opposed to the bank selling rate used for the receipt voucher entry where you receive the foreign exchange rate at which the bank buy the foreign currencies. Selling rate is the rate obtained from your banker and also available daily newspaper. Once the selling rate is specified in the rate of exchange menu while entering the foreign exchange transaction, the rate are default
automatically. However, you can alter the rate as required. As and when required, you can alter. Specified rate is used for calculating the foreign exchange variance. Specified rate is used for calculating the foreign exchange variance only in the case where there is no standard rate. If there is no standard rate, you need to create it, specified rate. Buying rate. What is buying rate? Buying rate is your rate is opposed to the bank buying rate used in the payment voucher. Specified rate is used for calculating the foreign exchange variance. अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज वेरिएंस अगर आपको चेंज होता है, फॉर एग्जांपल परचेस और सेल्स के टाइम पे आपका $1 का वैल्यू 90 रुपीज था, तो पेमेंट और रिसिप्ट के टाइम पे अगर वो 95 हो गया है तो उस टाइम पे हमको ये जरूरत पड़ती है स्पेसिफाइड रेट। अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस। ये अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस क्या होता है कि जब आप परचेस करते हैं उस समय डॉलर का रेट क्या है और जब आप पेमेंट करते हैं उस समय का डॉलर का रेट क्या है। अगर रेट में वेरिएंस है तो आपको क्या है अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। सोल्यूशन क्या है इसका? यूजर हैज टू क्रिएट अ फॉरेक्स गेन एंड लॉस एक्सचेंज अकाउंट। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू specify the rate here. Standard rate, selling rate is 90, buying rate is 90। ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा डाल दिया है क्योंकि कुछ दिन में $1 का करेंसी 90 होने वाला है। अभी 86 है, कुछ दिन में हो जाएगा ये, डोंट वरी, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एक ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं। इसको पहले हम समझ लेते हैं अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस क्या होता है। Unadjusted forex gain and loss balance will arise due to the exchange rate fluctuation. As per the accounting standard 11, the effect of the exchange in the foreign exchange rate, the company has to account for the exchange forex gain or loss, which consist both realized and unrealized gain or loss into the profit and loss account and balance sheet. इसका सोल्यूशन क्या है? अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, जरूरी है। द यूजर हैज टू क्रिएट अ लेजर, द यूजर हैज टू क्रिएट अ लेजर एज फॉरेक्स गेन और फॉरेक्स लॉस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम द बैलेंस शीट to profit and loss account using the journal voucher. In journal voucher, need to create a class for journal. Go to account info, voucher type, alter, select the journal specified voucher class name, for example forex class. Activate the option use class for forex gain and loss adjustment. Select forex gain or loss ledger, accept the screen. Gateway of Tally accounting voucher F7, select the voucher class forex class. Tally will display all the ledger for which you need to adjust the forex gain or loss. Finally, the adjusted amount will not be displayed in the balance sheet and it gets transferred to profit and loss account. Unadjusted forex gain or loss classified into two: realized forex gain or loss, unrealized forex gain and loss. Transaction completed, closing done. Transactions completed, closing done, that is realized. Unrealized forex gain and loss, only the market value but the actual closing transaction is not done. Transaction.
The amount which shows the actual forex gain or loss incurred during bill settling of or after making the payment or receipt. This is the unrealized transactions. Only when you record the purchase of sales that is realized, that is unrealized. When it is realized, when you make the payment or receipt, then it will becomes the realized. So अभी हम एक एग्जांपल्स के साथ में देख लेते हैं, परचेस एंट्री का देख लेते हैं. परचेस ऑफ वन स्टॉक at the rate $100 each, at the rate $100 EACH each. Exchange rate is 90 per dollar. Make the payment against the purchase. Exchange rate is $91. Make the payment realized 100 rupees. तो अभी हम टैली के अंदर आ जाते हैं. सेल्स वाउचर में चले जाएंगे, परचेज पे क्लिक कर देंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे. अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे पार्टी. पार्टी का नाम डाल देंगे हम, अरमांडो USA. और ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसे हम परचेज कर रहे हैं. किसी सॉफ्टवेयर में इसको अकाउंट्स पेएबल भी बोलते हैं, टैली में इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से जाना जाता है. अकाउंट्स पेएबल और बिल्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ये सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही आते हैं. ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया. डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वगैरह कुछ भी नहीं है, एड्रेस वगैरह जरूरत नहीं है. स्टेट कैलिफोर्निया डाल देते हैं. सॉरी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है. पिन कोड वगैरह डालते हैं, टैक्स अननोन, और इसको हम इंटर करके सिलेक्ट कर लेते हैं. डिस्पैच रिसिप्ट डिटेल्स जरूरत नहीं है. पार्टी डिटेल्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली. यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे हम, इंपोर्ट परचेस. ये हो जाएगा हमारा, अंडर परचेस अकाउंट आ जाएगा. ऐसे ही हम स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. यहाँ पे स्टॉक हम क्रिएट कर लेते हैं, वन स्टॉक. प्राइमरी ले लेते हैं, नंबर हम ले लेते हैं नोट्स नंबर, यूनिट एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको. अभी यहाँ पे हम जीएसटी वगैरह नहीं डाल रहे हैं, हम एक सिंपल इनवॉइस पास कर रहे हैं. तो क्वांटिटी हम कितना बाई कर रहे हैं, वन स्टॉक, वन क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, कितना, $100 ईच. तो यहाँ पे हमारा अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हमारा हो गया 9,000 रुपीज. 1 रुपी इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा करेंसी आ गया है ₹90 पर डॉलर. कुछ दिन में होने वाला है. ठीक है, तो इसके लिए मैं भी 90 रुपीज डाल दिया हूँ. 9,000 रुपीज हो गया. इंटर करके न्यू रेफरेंस, इंटर करके हम इनवॉइस को सेव कर लेते हैं. मेक द पेमेंट अगेंस्ट द एक्सचेंज. अब इसका रिपोर्टिंग देख लेते हैं. तो ये हमने परचेस किया है, तो हम बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9,000 रुपीज का हमारा परचेस दिखा रहा है, इंपोर्ट परचेस. बैलेंस शीट में आपको करंट लायबिलिटीज में दिखाएगा सन्ड्री क्रेडिटर से. और इसका लेजर बैलेंस हम चेक कर लेंगे, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर. अरमांडो का लेजर चेक कर लेंगे, तो इसको 9,000 रुपीज हमको देना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. ठीक है, अब पेमेंट एंट्री हम पास करते हैं. मेक अ पेमेंट अगेंस्ट द परचेज, एक्सचेंज रेट इज 91 रुपीज. तो हम वाउचर्स में जाएंगे, पेमेंट पे क्लिक कर देंगे. यहाँ पे हम बैंक क्रिएट कर लेंगे, HDFC.
बैंक इंडिया, ये इसका ग्रुप हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट। यहाँ पे डिटेल्स अभी कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इंटर इंटर करके लेजर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम सेलेक्ट कर लेंगे इधर पार्टी, जिस पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं, अरमांडो, और इसका 9,000 रुपीज डाल देंगे, 9123। अगेंस्ट रेफरेंस बिल आ गया, इंटर इंटर करके इसको हम, सॉरी, अब जब पेमेंट करने के टाइम पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, पेमेंट करने के टाइम पे हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, 1 रुपये से बढ़ गया, 91 रुपीज हो गया। तो इसको हमको पेमेंट करना था 100 डॉलर, तो इसको हम $100 ही पेमेंट करेंगे, $100। अगर ये हम $100 नहीं डालेंगे तो क्या है कि हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं आएगा, जिससे कि हमारा एक्चुअल एक्चुअल इनकम और एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है फॉरेक्स एक्सचेंज और गेन पे, वो हमको मालूम नहीं होगा। तो ये $91 हो गया। अब यहाँ पे 9,100 रुपीज हमारा पेमेंट हो रहा है। इसको इंटर इंटर करके यहाँ पे 9,100 डाल देंगे। पेमेंट मेड, नरेशन डाल देंगे, पेमेंट मेड पेमेंट मेड अगेंस्ट एजी अगेंस्ट इंपोर्ट, इंटर इंटर करके सेव कर लेंगे। अब हमारा रिपोर्ट्स देख लेंगे, क्या क्या रिपोर्ट्स देखना है आपको पता ही होगा। पहले तो हम लेजर देख लेते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट्स बुक, लेजर, अरमांडो यूएसए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस में हमारा क्या दिखा रहा है, 9,100 रुपीज। और यहाँ पे अनएडजस्टेड हमारा फॉरेक्स गेन एंड लॉस दिखा रहा है 9,200 रुपीज। ठीक है, और इसको हम देखेंगे बैलेंस शीट में भी देखेंगे। बैलेंस शीट में भी अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस दिखा रहा है, एसेट्स साइड दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या है, लॉस है। अगर लाइबिलिटी साइड हमारा दिखाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अब यहां से हटाने के लिए मैंने आपको बता दिया है पहले ही, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। बैलेंस शीट in journal voucher need to create the journal voucher need to create the journal, create voucher, I will create in the same, right, alter voucher, journal voucher, I will create the class here, use the class forex class, I will just copy and paste, okay, control C, control V, use class for forex gain and loss adjustment, make it yes. So here ledger will show, so I will create the ledgers here, forex, here low, yes loss, forex loss. So forex loss will be under indirect expense, forex loss will be under indirect expense, and I will create one more ledger, forex loss, and you can create one more ledger, forex income, forex income, that will be your under indirect income, control A.
So now I will select here for this voucher. We are power purchase amount is 9,000, but the payment we have done for 9,100. So this is the loss. Enter and accept it. You can click on accept. So now voucher class is created. Gateway of Tally accounting voucher F7. Now I will go to the gateway of Tally accounting voucher, that is already combined. Gateway of Tally gateway of Tally voucher. Select the for class F7. Select the class Forex class. Accept the screen. Tally will display all the ledger adjusted forex gain and loss. Finally, the adjusted amounts will not display in the balance sheet and profit and loss account. So I will press this space bar button here. So Armando USA is showing here. I will select it. Bill number is also showing. I will select that bill. So here 9,200 showing. I will select the amount. So our forex loss will, here the amount is showing more. 1 minute. So now you can see balance sheet. It is not showing indirect expenses. So here it is little bit value is showing wrong. I will delete this entry and repass this journal entry. I will going to pass the entry this again. So we are going to the vouchers, then we are going to click on journal and we will select the forex class, and particular we will press spacebar button. So all the ledger will show here. I will select the Armando. So you can see the pending bill is coming. I will select my pending bill. So it is showing the 100 rupees. I will select enter and I will just save the screen. अब हम अगर बैलेंस शीट चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं हमारा 100 रुपीज जो है वो करंट एसेट्स है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर लेंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा 100 रुपीज है, और वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या हो गया है, नेट लॉस हो गया है, क्योंकि हमने परचेज किया था 9,000 का, लेकिन हमने जो पेमेंट किया है वो 9,100 रुपीज का किया था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली ये आप देख रहे हैं, फाइनली द एडजस्टेड अमाउंट विल नॉट डिस्प्ले इन द बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट में हमको कुछ अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन ऑन लॉस नहीं दिखा रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले परचेज करना है, फिर उसका पेमेंट एंट्री करना है अगेंस्ट रेफरेंस लेके। पेमेंट एंट्री करने के बाद में जो भी आपको डिफरेंसेस दिखेगा, वो डिफरेंसेस अमाउंट को पहले आपको जर्नल वाउचर में जाके आपको एक फॉरेक्स गेन और लॉस क्रिएट करना है। मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ, ये एकदम आपको इम्पोर्टेंट है। वाउचर टाइप में जाना है, वाउचर टाइप में आपको जर्नल में जाना है। आप नया वाउचर टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं जर्नल के नाम से, या सेम जो आपका वाउचर टाइप जर्नल वाउचर टाइप है वहां पे जाके आप अल्टर नेम ऑफ द क्लास में चले जाएंगे। अल्टर नेम ऑफ क्लास में जाने के बाद में आप इंटर करेंगे यूज फॉर फॉरेक्स गेन ऑन लॉस एडजस्टमेंट, इसको आपको यस करना है। और यहाँ पे आपको लेजर्स दिखेंगे, फॉरेक्स इनकम, फॉरेक्स लॉस, या तो आपको इनकम होगा या तो लॉस होगा। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज में अगर वेरिएंस नहीं हुआ है तो आपका इनकम भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, और आपको डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो इस ट्रांजेक्शन्स में आप देख रहे थे हमने
9000 का परचेज किया था, लेकिन पेमेंट करने के टाइम पे 9100 किया है, तो ये हमारा लॉस था। तो इसको हम लॉस ले लेंगे और इंटर इंटर करके सेव कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, खाली वाउचर्स में जाना है। जर्नल वाउचर में जाने के बाद में आपको फॉरेक्स क्लास सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे। अभी हमारा एंट्री पास हो गया है तो वो लेजर नहीं दिख रहा है। जितने भी आपके पेंडिंग लेजर्स होंगे वो पेंडिंग लेजर्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अमाउंट ऑटोमेटिकली टैली ले लेगा, आपको इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करना है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो में आप कमेंट करके बताएं आपको क्या डाउट्स है। और मैं आपको एक चीज गाइड करूंगा कि जब आप फॉरेक्स परचेज करते हैं या फॉरेक्स आप सेल करते हैं तो आप ईच ट्रांजेक्शन्स का सेपरेट सेपरेट फॉरेक्स जर्नल का आप रिसिप्ट एंट्री पास कर लें। बहुत लोग 100 बिल हो जाता है, 50 बिल हो जाता है और वहां पे वो एंट्री पास नहीं करते हैं फॉरेक्स लॉस और फॉरेक्स इनकम का। इसमें क्या होता है कि कौन से बिल आपको ट्रैक करना है वो आप कंप्लीटली आपको मालूम नहीं रहता है, जिससे क्या है कि आपका अकाउंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक सेल्स के लिए, प्रत्येक परचेज के लिए आपको सेपरेट सेपरेट जर्नल, एडजस्टेड जर्नल, आपको एडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस आपको पास कर लेना है। अब आपका जो दूसरा एग्जांपल्स है ये आप लोग करेंगे। आप लोग के लिए ये असाइनमेंट है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज। अब रेट ऑफ एक्सचेंज जो है टैली का, वो डिटरमाइन कैसे होता है। टैली फर्स्ट चेक द स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट जो आप टैली में दिए हैं, पहले आपका वो स्टैंडर्ड रेट चेक करता है। मैं आपको यहाँ गो टू से दिखा देता हूँ। गो टू अल्टर एक्सचेंज, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट में यहाँ पे 85 डाल दे रहा हूँ। तो टैली पहले स्टैंडर्ड रेट पिक करता है। स्टैंडर्ड रेट नहीं रहता है तो आपको टैली क्या करता है, बाइंग रेट पिक करता है। बाइंग रेट नहीं है तो सेलिंग रेट पिक करता है। तो इस तरीके से फॉलो वाइज चेक होता है। जैसे कि आपने जीएसटी में भी देखा होगा, टैली का जीएसटी का रेट जो है पहले आप कंपनी लेवल से पिक होता है, कंपनी लेवल पे नहीं है तो वाउचर्स लेवल में पिक करता है, वाउचर ग्रुप में पिक करता है। सेल्स परचेज के ग्रुप में नहीं है तो स्टॉक आइटम के ग्रुप, जो स्टॉक आइटम का ग्रुप होता है स्टॉक आइटम ग्रुप से पिक करता है। स्टॉक आइटम ग्रुप में भी नहीं दिया हो तो स्टॉक आइटम से टैली पिक करता है। तो इसी तरीके से आपको रेट ऑफ एक्सचेंज भी इसी तरीके से पिक होता है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाइल मेकिंग द परचेज बिल यू विल गेट द रेट ऑफ एक्सचेंज, वी हैव टू गिव द पर डॉलर अकॉर्डिंग टू द इंडियन रुपीज करंट रेट। ये करंट रेट आप गूगल करके निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आ सकता है आपको, जैसे पिछले आपने देखा होगा। इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज इज सेम वी विल नॉट गेट द अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस। अगर हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज सेम है परचेज के टाइम पे और पेमेंट के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे और रिसीट्स के टाइम पे, तो हमको ये रिसिप्ट मतलब आपका बैंक में जब पैसा आया वो रिसिप्ट है, वो डेट आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि आप टैली में जिस दिन एंट्री पास कर रहे हैं वो आपको वो उस दिन का रेट आपको देखना है, नहीं वैसा नहीं है भाई। आप देख लीजिए जब आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं उस टाइम पे आपका बैंक अकाउंट है वो कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, वही आपको टैली में रिकॉर्ड करना है। गेट ऑफ टैली डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर, तो ये लेजर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। गेट ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट अकाउंट्स बुक लेजर अरमांडो यूएसए, ये हमारा लेजर है। अभी देख ले सकते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस नील है। और अगर आपको ये अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस आपको यहाँ पे दिखा रहा है तो टैली में प्रॉब्लम और क्या हो सकता है, एंट्री को आप दोबारा डिलीट करके, पेमेंट का एंट्री डिलीट करके दोबारा से पास कीजिए। डिलीट करने से नहीं होता है तो आपको डाटा कभी कभी डाटा रीराइट भी करना पड़ता है, डाटा रिपेयर भी करना पड़ता है। इस टाइप के मतलब होते रहते हैं। In which scenario we cannot delete the currency if the transactions are made in
वाउचर यूजिंग द पार्टीज। किस किस टाइम पे हम करेंसी अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो करेंसी डिलीट नहीं होता है। तो एक तो क्या है कि अगर हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया है पार्टी में सेलेक्ट करके तो उस टाइम पे हम करेंसी को डिलीट नहीं कर सकते। इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज इज गिवन, अगर हमने रेट ऑफ एक्सचेंज लेजर में रेट ऑफ एक्सचेंज दे दिया है, हम फिर से दिखा सकते हैं। पहला जो पॉइंट था वो अरमांडो यूएसए, यहाँ पे हमारा करेंसी आता है। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो इसको मोर पे क्लिक कर ले, शो मोर, करेंसी ऑफ लेजर। करेंसी ऑफ लेजर यहाँ पे देख रहे हैं दो आ रहा है, एक डॉलर और एक उसके बाद में रुपीस। तो अगर हम इसको डॉलर ले लेते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है कि हम इसको अगर करेंसी को डॉलर करेंसी को डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, मोर डिटेल में आपको करेंसी का सिंबल रहता है, तो ये आप यहां से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बेसिक डिटेल आपको इनेबल रहता है, एडवांस डिटेल्स जो है वो आपको इनेबल करना पड़ता है। कॉस्ट सेंटर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, पार्टी डिटेल्स में यहाँ पे देखिए आपको करेंसी का सिंबल आ जाएगा। नोट्स और डिस्क्रिप्शन आपको नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर और नोट्स, यूज करेंसी फॉर द बैंक एंड कैश लेजर। तो यहाँ पे करेंसी आ गया है, यही है हमारा। अलियास भी नहीं चाहिए हमको, लैंग्वेज भी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए करेंसी आ गया है हमारा। अगर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप स्पेसिफाइड में जाके करेंसी में जाके यहाँ पे मैनुअली डॉलर या INR ले सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज इज गिवन। दूसरा हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज हम कहाँ पे देते हैं, गेटवे टैली से, गेटवे टैली से फिल्टर, उसके बाद में रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे हमने रेट ऑफ एक्सचेंज स्पेसिफाई कर दिया है तो इस केस में भी हम करेंसी को डिलीट नहीं कर सकते। इन द पार्टी लेजर नेम इफ करेंसी इज यूज्ड, अगर पार्टी लेजर में करेंसी यूज हुआ है तो ट्रांजेक्शन में एक पार्टी लेजर में और एक रेट ऑफ एक्सचेंज में, ये तीन जगह पे अगर हमने डॉलर यूज किए हैं, सिंबल यूज किया है तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यूज किया है फिर भी डिलीट हो जाएगा, वो हम डिलीट करके दे देंगे, आप कांटेक्ट कीजिए हमको। ठीक है, अगर आपको डिलीट करना ही है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो जाएगा टैली में, डोंट वरी। While creating the ledger, party name have to give the base currency. If we give the other currency, we will not get the outstanding report. अगर दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि जब हम पार्टी का लेजर का जो नाम है अल्टर लेजर अरमांडो यूएसए, अरमांडो यूएसए, अगर यहाँ पे जो ये करेंसी फॉर द लेजर पे अगर हम यहाँ पे डॉलर ले लेंगे तो हमको क्या है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट नहीं मिलेगा। ये भी एक समझ लो टैली का बहुत बड़ा डिफेक्ट है, बहुत बड़ा बग ही है टैली में। In adjusted forecast of gain loss, if we get expenses or loss, it's shown on एसेट साइड्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आपका ट्रांजैक्शंस में लॉस होगा तो एसेट साइड में डिस्प्ले करेगा, अगर इनकम होगा तो लायबिलिटी साइड में डिस्प्ले होगा। तो यही था आपको मल्टी करेंसी का कंप्लीट वीडियोस। इसमें अगर आपको कोई पॉइंट्स में अगर किसी में डाउट है या जो पॉइंट्स आपके कवर नहीं हुए हैं तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, हम जरूर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये आपका जो दूसरा ट्रांजैक्शन है ये आपके लिए प्रैक्टिस है, ये आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और कुछ जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।